لیکن عمران خان کی جس تیزی سے یہ کیس کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، آپ میں سے کئی آئے ہیں کورٹ میں آ کے بیٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑا شیشہ لگا دیا ہے تاکہ آپ کو سماعت کی بھی آواز نہ آئے، اور اگر آپ سماعت سن لیں تو یقین کریں اس سے بڑا مذاق انصاف کا نہیں ہو سکتا۔ اور آج نہیں بلکہ 2 دن پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فیملی یو کے میں کورٹ میں جا رہی ہے، عمران خان کے بیٹے سلیمان اور قاسم یونائٹڈ کنگڈم میں کیس کریں گے، اور ایک کیس ہمارا فائل ہونے جا رہا ہے ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ کے اندر، اور یہ اس کے اوپر لائرز کام کرنا شروع کر دیے انہوں نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس کا جو اب خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے 1000 دفعہ بتا چکے ہیں کہ یہ ڈونلڈ لو نے ایک پیغام بھیجا تھا باجوہ کے لیے، اور یہ کیس جو ہے یہ عمران خان کے اوپر نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ جو کیس ہے یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہے، کیونکہ یہ پیغام جو ڈونلڈ لو نے جنرل باجوہ کے لیے بھیجا تھا کہ حکومت گرا دو، یہ عوام کی چنی ہوئی حکومت تھی جس کو جنرل باجوہ نے گرایا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عوام ہے، یہ کیس سزائے موت عمران خان کے اوپر نہیں ہو رہی، یہ عوام کے اوپر ہو رہی ہے۔ تب سے حکومت گری ہے، سب سے زیادہ بڑی سزا تو پاکستان کے لوگوں نے اٹھائی ہے کیونکہ معیشت کی تباہی ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب سزا تو پاکستان کو مل چکی ہے، پاکستانی لوگوں کو۔ یہ جو یو کے کا کیس ہے یہ سلیمان قاسم اور ان کی عمران خان کی فیملی اس کو بیک کریں گے، اور یہ بڑا سیریس کیس ہوگا، اس کا آپ کلیئر ہو جائیں۔ اب مجھے افسوس ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے، ہم نے آخری مومنٹ تک، آخری وقت تک یہ امید رکھی تھی کہ یہ ہمیں نہ کرنا پڑے۔ ہم تھوڑی سی بھی امید رکھ لیتے نا اپنی عدلیہ میں، لوگ ہمیں کہتے تھے، میں آپ کے سامنے بھی کئی دفعہ کہا ہے، ہم پھر بھی اوپر امید تھے کہ ہماری جو ججز ہیں انشاءاللہ یہ جو ان کے اوپر پریشر ہے یہ سہ جائیں گے، اور یہ ایسا کام نہیں کریں گے جو بذات خود ایک جرم ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جو اگر اس قسم کے فیصلے یہ جس جلدی میں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل فرد جرم عائد ہی نہیں ہوئی تھی، ہم ابھی وہ جج صاحب لکھ نہیں رہے تو آپ ٹی وی پہ چلا رہے تھے، کیسے آ گئی آپ کے پاس ٹی وی پہ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ساری اسکرپٹ لکھی گئی ہے اور یہ آپ کو ٹی وی پہ پہلے آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ہم یہاں جیل کے اندر بیٹھے تھے، کورٹ سے تو جج سے تو ہمارے پاس نہیں آئی تھی، جج تو وہ کہہ رہے تھے اندر لکھ رہے ہیں۔ تو یہ 2 کیسز کا میں نے آپ کو بتانا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل جا رہے ہیں، ہم عمران خان کو اس سزائے موت تک پہنچانے کی جو ہے نا پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچنے دیں گے، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم انٹرنیشنل بھی جائیں گے، اور کچھ نہیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ ہر کوشش کریں گے جو قانون کے اندر ہوگی کہ ان کو یہاں سے رہا کروایا جائے۔ کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ تو میڈم آپ کے وکیلوں نے یہ بات بتلائی ہوگی کیا پاکستانی شہری کے اوپر جو پاکستان میں قید ہو اس کے اوپر امریکہ میں یا برطانیہ میں کیس یعنی کہ اس وقت سے چل سکتا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو ڈوئل نیشنل بھی نہیں ہے، اگر وہ ڈوئل نیشنل ہوتے تو پھر وہاں پہ ان کی عدالتوں کی جورسڈکشن اپلائی ہوتی۔ دیکھیں، یہ اگر خالی عمران خان کے اوپر کیس تب ہوتا اگر صرف اس میں جنرل باجوہ انوالوڈ ہوتے، اس میں جنرل باجوہ، حسین حقانی جس کو انہوں نے ہائر کیا تھا، اور پھر ڈونلڈ لو نے جو جنرل باجوہ کو کہا تھا۔ اب اگر ہمیں چھپایا جا رہا ہے، اندر کہتے ہیں سارا کچھ سیکرٹ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اندر ہمیں کہتے ہیں سیکرٹ ہے، اور سیکرٹ رکھ کے اس کے اوپر خان صاحب کو سزائے موت سنا دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ہیومن رائٹس کا کیس ہے، یہ انسانی حقوق کا کیس ہے۔ اب میڈم آپ عالمی عدالتوں کی جانب جا رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو ریلیف ملے اور آسانیاں ہوں آپ کے لیے؟ دیکھیں، یہ ہمارے لائرز یہاں پہ پوری کوشش کر رہے ہیں، سارے لائرز سارا دن کبھی ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں بھاگ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو نظر اب آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کئی مہینے اسی طرح ہی چکر لگواتے رہیں گے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں اگر کوئی ہمارے جیسے لوگ جو کبھی انٹرنیشنل جانا نہ چاہیں، اگر ہم نے وہاں کا رخ کر لیا ہے تو کچھ تو ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ کوئی بہت تیزی اور بڑی جلدی ہے
खान साहब के ऊपर उनको सजा देने के लिए। खान मैम, ये भी साहब बता ने दीजिए। एतमाद में लिया है, क्या उनकी मर्जी इसमें शामिल है कि आप लोग यूके भी जाएं, अमेरिका भी जाएं? हमने खान साहब को पता है, उन्होंने बिल्कुल इस पे अब इत्तेफाक कर लिया है कि हाँ बिल्कुल यूके में भी करें और यूएसए में भी करें। और ये डेट भी बता दें कब तक? इस पर फिर लॉयर्स काम करना शुरू कर दिया इन्होंने इसके ऊपर, और इंशाल्लाह जल्द हम फाइल करेंगे। टाइम बहुत थोड़ा है, जिस स्पीड पे हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो इंसाफ के लिए नहीं यहाँ काम हो रहा। और अब मैं बड़ी मायूस होकर हम ये बात कर रहे हैं, और बड़ी मजबूरी थी जिसके तहत हमें ये फैसला करना पड़ा है। मैम, क्या ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है एज पर यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स होती है उनको देखते हुए कि खान साहब को ये फांसी देना चाहते हैं, या फिर आपके वकीला ने इस हवाले से आपको अवेयर किया है कि इस तरह का कोई ये माइंड सेट रखते हैं? आप मुझे बताएं, ये दफा जो राना सनाउल्लाह ने लगाई हैं, जो अप्लाई भी नहीं करती हैं इसके ऊपर, ये केस बन ही नहीं सकता। अगर वो चला सकते हैं, जो बन ही नहीं रहा, कोई जज जिसके सामने ये केस जाता मजाक है। आपको क्यों बाहर रखा जा रहा है? आपने एक दिन भी नहीं आके सुना ठीक से कि क्या हो रहा है, क्यों बाहर रखा जा रहा है? क्योंकि एक दफा आप सुन लेना तो आप भी हंसते हुए बाहर निकलेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा अंदर। ये किसी को हम बड़ी भी देखिए, फिर भी हम बड़ी मैं ये सोच रहे थे कि क्या पता ये थोड़ी सी बेहतरी की तरफ, पता नहीं, उम्मीद तो इंसान सारे रखते हैं। इंसान अपने जुडिशल सिस्टम की इंसल्ट भी नहीं करना चाहता। अब बाहर जाते हैं, लोग कहते थे बाहर जाएं, हमें बुरा लगता था कि हमारे अपनी जुडिशल सिस्टम की ये बहुत बड़ी तौहीन है। लेकिन क्या करें, अगर वो इतने मजबूर हैं तो फिर हम भी अब मजबूर हो गए हैं। अच्छा मैडम, ये बता दीजिए, खान साहब कहते रहे हैं कि ज़ाहिर है अमेरिकन गुलामी की बात होती रही है, अब अमेरिका में ही उन्हीं की वो इंसाफ लेने जा रहे हैं, कैसे? इसके अंदर गुलामी कौन सी बात है? इसके अंदर एक सेकंड, डोनाल्ड लू जिसने यहाँ पैगाम भेजा था कि इनकी हुकूमत गिरा दो, वो गुलामी है? या अगर आप अपना जस्टिस सिस्टम आपको इंसाफ ना दे सके तो आपको आलमी जगह पे जाकर जस्टिस मांगना, या वो गुलामी है? हम तो उनके पास जा रहे हैं कि आपके लोगों ने जो किया है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। आपने मैडम ये बताइएगा कि इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ हमारी समझ में आ रही है, आप पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है उस पर एतमाद नहीं है, आपको इंसाफ की कोई हमको नहीं। अगर आपको है तो आप मुझे बता दें, हम फिर चले जाएंगे उस कोर्ट में। आप जिसका आप कहेंगे हम उधर चले जाएंगे। आपने कहा कि तख्तादार तक इमरान खान को नहीं पहुंचने देंगे। इससे ये बात ऐसे आपकी झलक लगी है कि शायद आपको लगता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो टाइप का केस आगे बढ़ रहा है, और अब तक तो यही तासुर था कि इमरान खान को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन अब आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि ये इलेक्शन से बाहर करने की गेम नहीं है, इमरान खान को जुल्फिकार अली भुट्टो के केस का टू किया जा रहा है। बिल्कुल यही हम कह रहे हैं, हम आपको यही कह रहे हैं। आप ये समझ लें कि जो ये दफात हैं, पहले कोई सजाए मौत की दफात लगाने का ये केस बनता है। आप लोग इसके लिए कोई लॉयर होने की जरूरत नहीं, आप जरा इसको जरा केस खोल के देख लें। मेरे ख्याल में आप सारे समझदार लोग हैं, हमारे से ज्यादा समझदार हैं, आपको भी नजर आ जाएगा इसमें कुछ नहीं है केस में। ठहरो, मुकामी अदालतों में जो भी केस चल रहे हैं तो फिर आप लोग विड्रा कर लेंगे, डिफेंड नहीं करेंगे? क्या कह रहे हैं? अभी जो केसेस चल रहे हैं मुकामी अदालतों में पाकिस्तान, यहाँ तो क्या हमारे withdraw कर लेंगे? हमारे लॉयर्स कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। हम तो अपनी बात कर रहे हैं फैमिली की कि हम किधर, हम इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं। हम वहीं उनको चैलेंज करेंगे जिनकी वजह से, जिनको बचाने के लिए हो रहा है। मैं अफसोस ही कह रही हूँ ना, मायूसी में और अफसोस से कह रहे हैं। हम बिल्कुल अपनी अदालती निज़ाम की वो एक किस्म की इंसल्ट ही, अगर आप कहें कि जी बाहर जाना पड़ रहा है। अगर हमें मजबूरी है तो हम बाहर जा रहे हैं। आप लोगों को मोबिलाइज क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान में अगर हमने रूल ऑफ लॉ कायम करना है तो अगर इमरान खान हो या XYZ जो भी हो, पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि वो इस रूल ऑफ लॉ के लिए बाहर निकले। तो आप इंटरनेशनली जाने की बजाय पाकिस्तान के अवाम की कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? देखिए, पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हैं और लोगों को निकलना चाहिए अपनी ज़मीर की आवाज़ पे, क्योंकि ये लॉ सिर्फ इमरान खान पे तो नहीं होगा। कल आप लोग जब जाएंगे अदालतों में, आपको इंसाफ की तवक्को आपको भी नहीं मिलेगी। तो आप अपने निज़ाम के लिए बाहर निकलें, हम अपने भाई के लिए जाएंगे, आप अपने निज़ाम के लिए खुद निकलें। सिर्फ इमरान खान तो नहीं अफेक्ट हो रहा ना, आप सारों के साथ क्या होगा कल जब आप अदालत में जाएंगे? आपको उम्मीद है इंसाफ की?
अगर इमरान खान के साथ पब्लिकली ये तमाशा हो सकता है तो कल आपके साथ क्या होगा? तो लोगों को खुद करना चाहिए, अपने खुद ये सोच के निकलना चाहिए कि आप अपने निज़ाम को खुद बचाएं। आप कह रहे हैं कि मैं कॉल दूं, हम तो अपने भाई के लिए खड़े हैं, हम उसके लिए तो पहले कर लेना। अमेरिका ने भी कहा कि ये जो डोनाल्ड लू वाला या साइफर वाला है, ये तो खुद पाकिस्तान में ये पूरा मामला मैनिपुलेट किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या आप क्या कह रहे हैं कि ये तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि ये पाकिस्तान में चीज मैनिपुलेट की गई है, डोनाल्ड लू ने या अमेरिका ने ना ही हुकूमत गिराई ना ही कोई ऐसा तो थ्रेट किया था। फिर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट बता दे कि डोनाल्ड लू ने एक मीटिंग में क्या पैगाम दिया था बाजवा साहब के लिए, क्या पैगाम दिया था? आप बताएं, आप सबको पता है क्या पैगाम दिया था? साइफर नहीं पढ़ा और खान साहब के ऊपर सारे पाकिस्तान को देखें आप, वो एक इनका वो बाहर का ही जर्नल है, उसको इंटरसेप्ट, उसके अंदर सारा आया हुआ है। उन्होंने कहा था हुकूमत गिरा दो, खान साहब 10 दफा बता चुके हैं, सारे पाकिस्तान बता चुके हैं। सारी ये सीक्रेट क्यों है, पहले ये बताएं। एक आदमी कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो, इसके अंदर सीक्रेसी होनी क्यों चाहिए? इंटरसेप्ट को कैसे मिल गया वो साइफर जो खान साहब के पास था या शाह महमूद कुरैशी के पास था? वो इंटरसेप्ट ये इनके पास साइफर नहीं था। साइफर होता क्या, पहले आपको किसी को पता है साइफर क्या? कागज है, एक पैगाम है जो मीटिंग के अंदर जो मिनट्स होते हैं ना, एक मीटिंग होती है, आपको पता है ना मिनट्स होते हैं, हाँ, उसके अंदर जो मिनट्स होते हैं ये वो मिनट्स थे। मिनट्स की जो रिकॉर्ड है वो उठाकर उन्होंने पाकिस्तान भेजा, जो कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाना चाहिए। ये सिर्फ उसने कहा सिर्फ जाना चाहिए बाजवा साहब को। ये डोनाल्ड ल्यूक ने अगर गलती की है, उसको ऐसे हुकूमत का गिरवाने के लिए मैसेज नहीं भेजना चाहिए था, ये इसलिए हमें उसको पूछना चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट क्यों कहेगी कि उन्होंने सही किया? खान साहब ने खुद कहा कि जो जलसे में मैंने कागज लहराया था वो साइफर नहीं था। नहीं, एक सेकंड, आप इसको छोड़ दें, आप इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहले बताएं कि पैगाम था क्या। आपको पता होना चाहिए कि वो पैगाम भी नहीं पढ़ा होगा। आप ठहरे नहीं, आप ऐसे ही मेरे ख्याल में टाइम जाया करेंगे। अच्छा, अब ठहर रहे हैं, अभी ठहरे, ये आपको पता चल गया जो हमने कह दिया, अब हम जा रहे हैं। केस का आपने हवाला दिया, नसीम हसन शाह साहब का एक रैकेट पर है जो चीफ जस्टिस थे, उनका इसको रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा कि मार्शल्ला वालों की बात मानना पड़ती है। वो केस तो उन अदालत में हुआ, इस वक्त तो कोई मार्शल्ला नहीं है, तो आपको लगता है वो इस बिहाइंड ऑल तो ये सब कुछ हो गया? मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर जेल वालों से पूछें जहाँ से वहाँ ऑर्डर ले रहे हैं, हमें नहीं पता। हमें भी यही है, पहले मार्शल्ला था, पता था कि कौन लोग हैं, अब सिर्फ सुनते हैं जी ऊपर से ऑर्डर आया। जिससे पूछो, जिससे बात करो, ऊपर से ऑर्डर आया। मैं क्या, मैं पाकिस्तान में इस वक्त कोई शक में नहीं है। मीडिया से पूछो, आप लोगों के कैमरे कल बंद हो जाएंगे, आप बताएं कहाँ से आया ऑर्डर आया। आप लोग क्यों सुन रहे हैं? आप क्यों इमरान खान का नाम बंद कर रहे हैं? आप बताएं क्यों बंद किया हुआ है टीवी के ऊपर? ऊपर से ऑर्डर आया। आप भी सारे, आपसे अभी मैं सवाल पूछूंगा, आप कहेंगे जी ऊपर से। आपका ऊपर का, सबका ऊपर का एक ही ऑर्डर है, तो आप बता दें नाम लेते हुए, आप क्यों घबराते हैं सारे? थैंक यू। अच्छा, अब जी हम आज की जो प्रोसीडिंग हुई है कानूनी, उसके बारे में आपको बताएंगे। कल से ये बहुत सारे मीडिया के ऊपर बात चल रही थी कि चार्ज फ्रेम हुआ है कि नहीं साइफर के केस के अंदर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर। तो हम आज जब अदालत में गए, पहले तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्रिमिनल रिविजन लगी हुई थी, वो अब अगले बुध तक चली गई हैं। जब हम यहाँ पे आए तो हमने कल के फैसले की कॉपी मांगी, जिसको हमने जब पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जी चार्ज पढ़ के सुनाया गया, और उसके बाद ये भी लिखा हुआ था कि जी चार्ज उनको कहा गया, शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को, कि आप इसके ऊपर दस्तखत और अंगूठा लगाएं, और उन्होंने उससे इनकार किया। अब ये बात जो है मैंने वहाँ पे मौजूद अपने सारे साथी वकला से भी पूछी, खान साहब से भी पूछी और शाह साहब से भी पूछी कि क्या आपको ऐसी कोई बात अदालत की तरफ से कही गई थी, क्योंकि हमने तो नहीं सुनी थी। तो खान साहब ने और शाह साहब ने क्लियरली ये पैगाम दिया है और ये बताया है हमें कि उन्हें बिल्कुल अदालत ने ऐसी कोई बात नहीं की थी।
कि आप दस्तखत करें या अंगूठा लगाएं। अगर ऐसे कहा जाता तो हमें पता चलता कि फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है और हम उस पर अपनी ऑब्जेक्शन भी रेज करते, जहाँ दस्तखत करते वहाँ ऑब्जेक्शन इन राइटिंग भी देते। तो ऐसा कोई तरीक़ेकार जो है वो कल हुआ ही नहीं है। आज की जो बाकी प्रोसीडिंग हुई उसमें कल एक सेक्शन 14 की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन दी थी कि दिस ट्रायल शुड बी कंडक्टेड इन कैमरा टू द एक्सक्लूजन ऑफ द पब्लिक, यानी कि आम आवाम के बगैर इसको ट्रायल को इन कैमरा किया जाए। अब वो जो कल एप्लीकेशन थी उसमें बड़ी मज़ेदार बात लिखी हुई है जो आज हमने अदालत के आगे उठाई, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जी क्योंकि चार्ज फ्रेम हो चुका है, अब अगली तारीख पे एविडेंस के लिए रिकॉर्डेड है, एविडेंस में कई खुफिया बातें आ सकती हैं, तो इसलिए इन कैमरा किया जाए। हमने आज अदालत से इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन को कैसे पता था कि आज चार्ज फ्रेम हो चुका है और फिर एविडेंस के लिए चीज़ रिकॉर्ड होगी। दूसरा ये एप्लीकेशन फिर उन्होंने कहा कि जी हमने मौके पे दी, हमें जब चार्ज फ्रेम हो गया, लेकिन वो जो एप्लीकेशन थी वो टाइप्ड फॉर्म के अंदर थी। हमने ये भी एतराज़ उठाया कि हम तो सवाए कलम और कागज़ के अंदर और कुछ लेके नहीं जा सकते, अंदर टाइपिंग कैसे हो सकती। बहरहाल इस सारी चीज़ के बावजूद आज इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने भी बहस की और हमने मुकम्मल दलाइल दिए कि कैसे इन कैमरा ट्रायल इस मामले में नहीं होना चाहिए। इस मामले का जो चलान है वो वही है जो चलान पिछले ट्रायल के लिए दिया गया था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलादम करार दिया। कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई। जो प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन है उसमें कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि ऐसी क्या नई खुफिया दस्तावेज़ात या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आप वो समझते हैं कि इन कैमरा ट्रायल करना चाहिए। तो वो सारे मामला जज साहब के आगे, अदालत के आगे रखे गए। उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। आज जो है अदालत ने अपनी हियरिंग जो है मौखर कर दी है। हमें अभी नहीं पता कि अब अदालत जो है वो कल लगेगी, अगले हफ्ते लगेगी, प्रोसीडिंग होंगी क्या, आज का फैसला हुआ क्या है, क्या उनकी एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन की अलाउ हुई है कि जज साहब हमारी बातों से कायल हो गए हैं कि इन कैमरा ट्रायल नहीं हो सकता, ख़ास तौर पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर इस पर फैसला मौजूद है। तो ये और जजमेंट अवेटेड है उसमें, तो इसलिए हमें देखना चाहिए। जैसा खान साहब की फैमिली ने आज मायूसी का इजहार किया, क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं क्योंकि आप खुद इस प्रोसीडिंग का हिस्सा है? क्या वाकई आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा और ये राइट टाइम है कि आप लोग इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं? और अगर आप लोग मुकामी कोर्ट में खान साहब को डिफेंड नहीं कर पा रहे तो इंटरनेशनल कोर्ट में आपके पास क्या एविडेंस है कि आप उसको डिफेंड करें? देखें, ये तो किसी भी, देखें ये पार्टी का मामला तो नहीं है। फ़र्द वाहिद जो हैं, दो इंतहाई अहम शख्सियात इस वक्त पाबंद सलासिल हैं बड़े सीरियस एलिगेशंस के तहत, तो उनकी फैमिलीज़ का राइट है कि वो जिस मर्जी अदालत के दरवाजे खटखाएँ, उस राइट से उनका बुनियादी हक है, तो उससे कोई नहीं रोक सकता। वो शाह साहब की फैमिली करना चाहे, खान साहब की फैमिली करना चाहे, उन सब का हक है। जहाँ तक देखें, हमें तो नहीं पता, मैं या उमैर नियाजी साहब या हम में से तो वहाँ वकालत नहीं कर रहे। वो तो जब मामला आगे चलेगा तो ओपन, बिल्कुल हम सिग्नेटरीज हैं जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR पाकिस्तान उसका पार्टी है, तो बिल्कुल जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की प्रोटेक्शन है, फंडामेंटल राइट्स की, वो ज़रूरी है। लेकिन मैं ये बात करूंगा, आपका सवाल ये था कि क्या मायूसी हो रही है कि नहीं हो रही। देखें, हम तो वी आर लॉयर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। हम अदालत का एहतराम करना चाहते हैं, करना जानते हैं। अदालत से ये भी चाहते हैं कि वो हमारा भी एहतराम करे। लेकिन अगर एक चीज़ कल हुई नहीं, अदालत ने ये कहा ही नहीं मुल्ज़िमान को कि जनाब आपको मुजरिम बनाया जा रहा है, आपके ऊपर ये लगाई जा रही है फ़र्द जुर्म और आप आके दस्तखत करें या थंब इम्प्रेशन दें, जब ये कहा नहीं गया, लेकिन जो रिटन फैसला है उसमें ये बात लिखी हुई है, तो अब वो मेरा सुलेमान सफदर साहब या उमैर नियाजी की बात है, दूसरी तरफ जज साहब की बात है। अगर ये ओपन ट्रायल होता, आप सब वहाँ मौजूद होते, इंडिपेंडेंट मीडिया वहाँ मौजूद होता, तो ये बात मेरी या किसी और की बात ना होती, ये क्लियर होती। अब ये बात मुबहम हो गई है और ये हर कोई अपनी पोजीशन ले सकता है। जब हम इस फैसले को आला अदलिया के आगे लेके जाएंगे, अदलिया कहेगी कि नीचे एक ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि ये कहा गया था और उन्होंने इनकार किया। अब हम उस पर हम क्या एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं कहा गया था और ऐसे नहीं हुआ था, क्योंकि कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, इसलिए आज हमने मुकम्मल ये बहस की कि इन कैमरा ट्रायल नहीं हो सकता, वो भी इतने संगीन मामले का। आप आवाम को, मीडिया को देखने दें, फिर जो भी इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए। हमारा अभी भी देखिए, बाहर जो भी फैमिली मेम्बर्स जाना चाहें और वहाँ से इंसाफ मांगना चाहें, वो उनका हक है। हम पाकिस्तान के वकला हैं, हम पाकिस्तान की अदालत, आज भी पाकिस्तान की जेल के बाहर खड़े हैं और हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ मिलेगा हमें।
इन अदालतों से किसी न किसी फोरम महमूद साहब ये बताइएगा, प्रोसिक्यूशन का कहना है कि कानून में ये प्रोवाइडेड ही नहीं है कि जो फर्ज जुर्म है उस पर मुल्ज़मान के दस्तखत हो। दूसरा ये बताइएगा, कल जो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है आपकी जानिब से भी, उस तरफ से भी, ये फर्ज जुर्म आयद नहीं हुई है, जज साहब ने भी कहा कि फर्ज जुर्म पढ़कर सुनाई गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके ऊपर पहली तो बात ये कहूँगा कि ये हमारे या अदालत के कहने की बात नहीं है कि थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर चाहिए थे कि नहीं। जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो उनका कल का फैसला है जो हमने आज पढ़ा है अदालत में, उसकी कॉपी नहीं मिली, सिर्फ हमें पढ़ाया गया, उसमें ये लिखा हुआ है कि अदालत ने ये पूछा मुल्ज़िमान से कि आप सिग्नेचर करना चाहेंगे, थंब इम्प्रेशन देना चाहेंगे, तो उन्होंने उससे इनकार किया। मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि ये चीज़ हुई ही नहीं, ठीक है। सो ये कैसे आगे चल सकती है। दूसरी बात है, कल हमारी इसके ऊपर बहस ही नहीं हुई थी। कल जो सारी बहस थी वो ये थी कि चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता बिकॉज हमें मुकम्मल दस्तावेज़ात नहीं दी गई थी, और जो पाकिस्तानी कानून कहता है कि 7 दिन का वक्त चाहिए फराहमी ऑफ दस्तावेज़ात पूरे चलान की कॉपी मुहैया करने के बाद। ये अदालत ने माना है। प्रोसिक्यूशन से आप चाहे अगली दफ़ा सवाल पूछ लें कि क्या कल 13 तारीख को हमें अदालत में सीडीज़ नहीं दी गई थी, या उससे पहले एक दिन पहले, और कल मिसिंग पेजेस नहीं दिए गए थे। अब उसके बाद 7 दिन कब पूरे होंगे? वो तो अगले हफ्ते होंगे। तो अगर वो 7 दिन पूरे ही नहीं हुए तो चार्ज कैसे फ्रेम हो सकता है? और वो भी चार्ज उस तरह जब हमें पता ही नहीं कि हमें वो चार्जशीट इसलिए पढ़ के सुनाई गई कि चार्ज फ्रेम कर दिया गया। ये बिल्कुल जी, अभी तो हम जेल से बाहर निकले हैं, इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे और बिल्कुल जाएंगे, हम हर चीज़ के ऊपर जा रहे हैं। बट हमारे आगे बुनियादी सवाल यही खड़ा होगा कि जो जज साहब का ऑर्डर है उसमें उन्होंने एक बात लिखी हुई है जो कि हमारे सब के नज़दीक, और खान साहब और शाह साहब ने आप सब के लिए पैगाम दिया है कि हमसे अदालत ने ये नहीं पूछा। अब या तो वो गवाही के लिए शाह साहब और खान साहब को अदालत बुलाएं, वो आके कह दें हाई कोर्ट के अंदर कि जी हमारे से ऐसा कोई सवाल नहीं किया गया, तो ये इस बात में क्लैरिटी कैसे आएगी? इसलिए ये बुनियादी, इस चीज़ से तो ये बात वाज़ेह हो गई है, और कि ओपन ट्रायल होना, मीडिया का, इंडिपेंडेंट मीडिया का वहाँ मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है। तो इसलिए ये मामला तो उसके बगैर मेरे ख्याल में आगे चलना ही नहीं चाहिए। बहरहाल हम अदालत में आते रहे। दो आखिरी सवाल है, बस ये बता दें कि आप जिन 2 अहम शख्सियात की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर आप उनके वकील भी हैं, बस ये बता दें कि इतना बड़ा फैसला इंटरनेशनल जाने का वकीला से मुशावरत के बगैर तो मुमकिन नहीं है। आपका इसमें मशवरा क्या था? क्या आपको उम्मीद है इंटरनेशनल? देखें, वो अभी तो गए नहीं है कोर्ट में, जब जाएंगे उसके बच्चों का फैसला है। उन्होंने उनके बेटों का नाम लिया, उनके बेटों की वहाँ पे अपनी लीगल टीम मौजूद होगी, उन्होंने उनसे कंसल्ट किया होगा, बेहतरीन वकीला वहाँ मौजूद हैं, तो उसके ऊपर वो बात कर सकेंगे। हम तो आपके सामने रोज़ अडियाला जेल आते, अडियाला अदालत आते हैं पेशी के लिए। उमैर नियाज़ी साहब, दो चीज़ें जी खान साहब ने कही हैं, क्लैरिफाई करनी है, जो कहते हैं बहुत ज़रूरी हैं। एक जो अफगानिस्तान और हमारे ताल्लुकात इस वक्त कशीदा होने जा रहे हैं, जो हमने इस वक्त पॉलिसी इख्तियार की कि 1.5 मिलियन रेफ्यूजीज़ हमारे यहाँ मौजूद थे, और हमने एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से ऑर्डर कर दिया कि इनको बाहर निकाल दिया जाए। वो 40 साल से इस मुल्क में मौजूद हैं। ये कोई वोटों की तकसीम की बात नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें, हिजरत का कॉन्सेप्ट हमारे इस्लामिक कवानीन में मौजूद है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, उससे पहले बहुत सारे पैगम्बरों ने हिजरत की। लोग हिजरत करके आते हैं, आबाद होते हैं, उनके भी राइट्स होते हैं। ह्यूमन राइट्स की हम वायलेशन कर रहे हैं, जिस तरह से हम भेड़ बकरियों के तरह इन्हें ट्रीट करते हुए इन्हें बाहर निकाल रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात कशीदा होते जा रहे हैं। तो इस पे हमें फौरी रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि कल को ये ना हो कि ये मसला बहुत बड़ा कशीदगी इख्तियार कर जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने ये आज नहीं बात करा, मैंने इस पे पहले भी बात की है, और ये मैं बंगालियों के हकूक़ के लिए भी बात करता रहा हूँ। जिस तरह 5 लाख बिहारी पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज तक उनका स्टेटस डिटरमिन नहीं हो सका। देखिए, ये ह्यूमन राइट्स, बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। हमें इस चीज़ को देखना है, हमने उनके स्टेटस का अकॉर्डिंग टू हमारे पाकिस्तानी कवानीन डिटरमिन करना है, ताकि ये लोग इस तरह से ब्लैकमेल ना हो और उनके साथ इस तरह का इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना हो। सेकेंडली, उन्होंने नवाज शरीफ की स्टेटमेंट को रिबट किया, जो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ हम ताल्लुकात का नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की कभी भी कॉस्ट उसकी कश्मीर कॉज की एक्सपेंस पे नहीं होगा। देखिए, कश्मीर की कॉज सबसे अहम है,
कश्मीरी भाइयों का जब तक फैसला एज पर इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं होगा, पब्लिसाइड के जरिए उन्हें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दिया जाएगा, हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े रहेंगे। देखिए नवाज शरीफ की घबराहट क्या है, देखिए इंडो इसराइली लॉबी का प्रेशर है। इंडो इसराइली लॉबी नहीं चाहती कि हम उस तरह से इंडिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ें, मगर देखें हम कश्मीर को सेक्रीफाइस इनकी खुशियों के लिए नहीं कर सकते। और खान साहब ने कहा कि जब हमारी हुकूमत निकाली गई सबसे ज्यादा खुशियां दो जगह पे मनाई गई, एक इंडिया में और दूसरा इजराइल में, और इससे पता चल जाना चाहिए कि इन सारों का नेक्सस क्या है। तो इस चीज को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। शुक्रिया। इधर सेंटर में आ जाए। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे आप लोग पूछ रहे थे कि आपको क्या मायूसी है यहाँ के अदालती निज़ाम में और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। तो मैं इसमें सिर्फ आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, याद दहानी कराना चाहती हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, वहाँ से जवाब नहीं आया अभी तक। हम अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जवाब के मुंतज़िर हैं और हम इंसाफ के भी मुंतज़िर हैं। हमें मायूसी ज़रूर है मगर हमने शिकस्त बिल्कुल तस्लीम नहीं की, क्योंकि इंसान शिकस्त तब तस्लीम करता है जब वो अपने दिमाग में शिकस्त उसको मिल जाए, और हम दिमागी तौर पे कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। हम हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। यहाँ पर इस वक्त हमें मायूसी इसलिए है क्योंकि जाहिर हो गया है कि ये मैच फिक्स्ड है। ऑर्डर्स लिखे लिखाए आ रहे हैं, नोटिस लिखे लिखाए दिए जा रहे हैं। अंदर तो ना कोई टाइपराइटर है ना कोई स्टेनोग्राफर है, तो कहाँ से लिख के ला रहे हैं, पहले से कैसे इनको मालूम है? ये सवाल आप लोगों को पूछने चाहिए, मगर आप पूछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अदालत के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए बंद हैं। हालांकि ट्रायल ओपन है मगर आपके लिए बंद है, तो ये आपके हकूक भी यहाँ पे मुतासिर हो रहे हैं। ये मीडियाज राइट टू रिपोर्ट, योर राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब मुतासिर हो रहा है। अवाम्स राइट टू इंफॉर्मेशन मुतासिर हो रहा है। तो इस वक्त हम सबको आवाज उठानी चाहिए है। ये एक ओपन ट्रायल है जिसको ये अब और महदूद करना चाह रहे हैं और इसको बंद करना चाह रहे हैं। क्यों बंद करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये अपनी मर्जी का फैसला देना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि वहां पे कोई भी हो सवाल पूछने वाला, कोई भी हो जो प्रोसेस पे सवाल उठा सके। इसलिए जरूरी है कि आप लोग भी इस पे आवाज उठाएं। हम तो उठा रहे हैं, आपको अंदर होना चाहिए ताकि जैसे कल एक कंफ्यूजन पैदा हुई वो ना हो। अगर आप लोग अंदर बैठे होते तो आप लोग खुद देखते कि कोई फर्दे जुर्म की कोई शीट किसी को दी ही नहीं है, किसी को सिग्नेचर का कहा ही नहीं है। अब ऑर्डर में तो उन्होंने लिख दिया जो वो लिखना चाहें, बाहर आप कहेंगे आप ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, आवर वर्ड वर्सेस देयर वर्ड, पर वेयर इज योर वर्ड? आपका तो किसी को पता नहीं क्योंकि आप अंदर हैं ही नहीं, आप देख ही नहीं सकते। कोई न्यूट्रल एम्पायर बैठा ही नहीं है अंदर। न्यूट्रल एम्पायर कौन है इस सिलसिले में? मीडिया है, अवाम है। जब अवाम और मीडिया अंदर होंगे तो एक फिक्स मैच, जब आप क्रिकेट भी देखते हैं और मैच फिक्सिंग का उस पर इल्जाम लगता है तो ऑडियंस तो देख सकती है ना, ऑडियंस तो कहती है ओ भाई ये मैच फिक्स्ड है। तो आप हैं वो ऑडियंस, आप अंदर होंगे तो शायद आप भी यही कहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको अंदर तक रसाई मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो केस है, ये जो ट्रायल है, ये ओपन हो। ये इंसाफ का तकाजा यही है और ये बहुत संगीन नौयत का केस है और ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस है। ऐसा केस आज तक पाकिस्तान में आया नहीं। कोई साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को सीक्रेट एक्ट के तहत ट्राई आज तक नहीं किया गया। ये एक लैंडमार्क केस है। आप सबका हक है, पूरे पाकिस्तानी अवाम का हक है कि वो ये सुने। और अगर ये सीक्रेसी पे बात करते हैं, कौन सी सीक्रेसी? या तो सीक्रेट इमरान खान साहब ने खुद ही आउट कर दी इसीलिए उन पे केस लगा है, या कोई सीक्रेट थी नहीं। और अगर सीक्रेट है भी तो अंदर तो ये कोई डॉक्यूमेंट देते ही नहीं है, हर डॉक्यूमेंट सीक्रेट है, फिर भी इसको महदूद करना चाहते हैं। क्यों? सवाल तो ये बनता है ना कि इतना महदूद क्यों करना चाहते हैं? ये आपको सवाल पूछना है। थैंक यू।